Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, as you know, we are studying what happened during the Mughal period, or you can say in the medieval period. So far the architecture is concerned, the Mughal period also saw great growth in literature. Much progress was made during the period of Akbar. Many writers wrote in Hindi, among them were Vallabhacharya, Keshavadas and Rahim. Many languages also established, especially the regional languages. We can say about our own language, that is Kashmiri, Punjabi, Oriya, Bengali, Assamese, Gujarati, Marathi, Tamil, Telugu, Malayalam, Urdu. All these regional languages were also established during this period. Much of the Punjabi literature also established. Guru Arjan Dev compiled the Adi Granth, that is the scripture of the Granth Sahib. About the Sikhs, Bhai Man Singh wrote Gyan Ratnawali and the Sufi saints wrote Kafis. It was also in the Mughal period that Waris Shah, the important poet and writer, who wrote about the story of Heer Ranjha, and the legend of Mirza Sahiban was also written in this period. Development in the field of painting. What about development occurred during this period about the painting? First of all, it is the Rajasthani painting. The origin of Rajasthani painting especially dates back to the 16th century. Rajasthani painting is generally found in three forms: court painting, in the courts of emperors, literary painting, and folk painting. Rajasthani painting is further divided into four distinct styles: Mewar style, Ajmer, Jaipur style, Marwar style, Bundi Kota style. So far the Mewar style is concerned, Mewar painting first gained recognition with the Ragamala paintings. तो इसकी रिकॉग्निशन कहाँ मिलती है? रागामाला पेंटिंग्स की. वो कब हुई थी? 1605 में, द ईयर ऑफ अकबर्स डेथ. जब अकबर की डेथ हुई थी तब जाके मेवार की पेंटिंग रागामाला से होती है. मेवार में दीज पेंटिंग्स पोर्ट्रे. तो क्या दिखते हैं इस आर्ट से? हमें क्या दिखता है? चाइल्डहुड इंसिडेंट्स ऑफ कृष्णा का जो बचपन में जो वाक़या हुए थे वो सारा दिखता है इस पेंटिंग से. एंड इज प्रोलिक्स विद द गोपीज, द हीरो हीरोइन थीम्स ऑफ. ये सारा देवी देवताओं की जो कहानी है हिंदी पोइट्री के मुतालिक, ये सब इस पेंटिंग से हमें पता चलता है, और म्यूजिकल नोट्स वगैरह. सीन्स फ्रॉम द भगवता एंड द रामायण, जो इनकी हिंदू बुक्स है, रामायण और महाभारत, रामायण और भगवता के बारे में, आर डिपिक्टेड ब्यूटीफुली ऑन ए वाइडर कैनवास. सीन्स फ्रॉम रूरल एरियाज, मैरिज सेरेमनीज क्या होती थी, पोजीशंस, डांस वगैरह, ये सारा इसमें डिपिक्ट होता है. दिस स्कूल ऑफ पेंटिंग कंट्रीब्यूटेड अप टू द दिस स्कूल ऑफ पेंटिंग कंटिन्यूड अप टू द क्लोज ऑफ द 17th सेंचुरी. द इम्पोर्टेंट सेंटर्स वेयर चित्तौर. तो इसकी इम्पोर्टेंट सेंटर्स कहाँ थी? चित्तौर, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, सिरोही एटसेट्रा की ये इम्पोर्टेंट मेवार पेंटिंग्स के सेंटर्स थे. तो उसके बाद है मारवाड़ पेंटिंग्स. तो बेसिकली ये इसकी जो टिपिकल स्टाइल है वो मुगल ट्रेंड से है. दिस स्कूल डेवलप्ड इट्स ओन स्टाइल ऑफ पिक्टोरियल आर्ट. जोधपुर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द प्रिंसिपल सीट्स ऑफ द मेवाड़ स्कूल. तो जोधपुर जो है इसमें जो बेसिक स्कूल ऑफ आर्ट था ये यहाँ से होता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोधपुर पेंटिंग्स आर इक्विस्ट्रियन. इक्विस्ट्रियन क्या होता है? एक स्पोर्ट के रिलेटेड टर्म है जिसमें हॉर्स राइडिंग होती है, जो आप पेंटिंग पे देखते हो. इसमें पोर्ट्रेट्स ऑफ द रॉयल हाउस एंड द नोबिलिटी. ये जो बादशाह हुआ करते थे ये घोड़ों पे कैसे चला करते थे, जंग करते थे, चक्कर पे जाते थे, ये सारा इस पेंटिंग से डिपिक्ट होता है, मारवाड़ पेंटिंग से. द इम्पोर्टेंट सेंटर्स क्या थे मारवाड़ पेंटिंग के? बाइकनर, जोधपुर, कृष्णागढ़, जैसलमेर एटसेट्रा. By the 18th century, the art of Rajasthani painting had spread to most of the princely courts within Rajasthan. Kishangarh, Jaipur, Bundi, Bikaner and Kota, राजस्थान में thus became the new centers of the Rajasthani school के आर्ट जो थे इन सेंटर्स में चलाया जाता था. किशनगढ़, it developed into a very important school of Rajasthani painting. 18th century में हुई थी. राजा सम्मत सिंह वाज द चीफ पैटर्न. इसमें सबसे ज़्यादा जो
सरपरस्त एला रहा वो रहा राजा सामंत सिंह इस स्कूल के जो कृष्णा ग्रह का आर्ट था। निहाल चंद वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोड पेंटर। इसमें निहाल चंद इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, इसमें कौन इम्पॉर्टेंट कोड पेंटर था? निहाल चंद उसका नाम था। किसका? कृष्णाग्रह की पेंटिंग का। द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स वाज द, तो किस सब्जेक्ट पे पेंटिंग बनाई जाती थी? कृष्णा राधा डेलियंसिस पे, बूंदी कोटा। तो ये बूंदी कोटा आर्ट जो है ये राजस्थान में था। ये भी एक इंटरेस्टिंग पेंटिंग का स्टाइल था। तो ये पेंटिंग्स बिगिन हुई थी ऑन द कोर्ट सीन्स अंडर राव छत्रसाल एंड बहू सिंह के, मनी सीन्स ऑफ नोबल्स, लवर्स एंड लेडीज एट कोर्ट्स वर प्रोड्यूस्ड थ्रू द 17th एंड 18th सेंचुरीज। जो बादशाह के दरबार में लेडीज़ होती थी, लवर्स होते थे, नोबल्स होते थे, उनकी पेंटिंग डिपिक्ट होती है बूंदी कोटा से। कोटा बिकेम फेमस फॉर एक्सीलेंट हंटिंग सीन्स। कोटा इस शिकार की जो पेंटिंग होती थी एक अहम जरिया बन गया है। राव राम सिंह सेकंड 1827 to 1865 वाज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ दिस स्कूल। इसमें सबसे ज़्यादा सरपरस्त आला था वो राव मान सिंह सेकंड था। उसके बाद पहाड़ी पेंटिंग्स, दीज पेंटिंग्स केम फ्रॉम स्मॉल हिंदू किंगडम इन पंजाब हिल्स। तो ये जो पहाड़ी पेंटिंग है गुर्जर बकरवाल के बारे में, तो ये पंजाब के हिल्स से आई है। मोस्ट ऑफ दीज टिनी किंगडम्स रूल्ड बाय राजपूत फैमिलीज ऑफ बसाली। तो बसाली के जो राजपूत फैमिली थी उन्होंने रूल किया चंबा पे, गुलार पे, जम्मू, नारपुर, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में गढ़वाल, कांगड़ा एक्सेट्रा वेयर सराउंडेड बाय स्नो क्लैड माउंटेन्स। स्नो क्लैड माउंटेन जो आप देखते हो पेंटिंग पे, तो ये पहाड़ी पेंटिंग्स कहलाई जाती है। इंस्पायर्ड बाय लव, द मेन थीम ऑफ दिस पेंटिंग्स इज द बॉयहुड प्रैंक्स ऑफ कृष्णा। कृष्णा का जो बॉयहुड था, हिज कावर्ड कंपेनियंस ऑफ हिज amorous frolics with Radha, we symbolize the devotion of man for divinity. Folk paintings include होती है मधुबनी स्टाइल दैट ऑरिजिनेटेड इन बिहार। ये मधुबनी स्टाइल पे मबनी है, बिहार से आई है, एंड विच हैज़ एनचेंटेड द वर्ल्ड ओवर सिंस। तो वर्ल्ड को ये बहुत अच्छा लगा इस पेंटिंग। द वोरलॉय स्कूल ऑफ महाराष्ट्र एंड पट ऑफ उड़ीसा में भी ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। फ्लोर पेंटिंग सच एज रंगोली इन महाराष्ट्र, रागावली इन कर्नाटका, कोलम इन तमिलनाडु, मदना इन मध्य प्रदेश, अलापना इन वेस्ट बंगाल एंड आईपना इन उत्तराखंड आर क्वाइट ब्यूटीफुल about folk paintings. It is all about the paintings of these rulers.